اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کا درس بعنوان آداب رمضان ہو رہا ہے، ایٹیکیٹس آف رمضان۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ 99 نام جو قرآن کے حاشیوں میں لکھے ہوتے ہیں ان میں یہ نام شامل نہیں ہے۔ ہزاروں نام جو اللہ کے اور ہیں ان میں یہ نام ہے رمضان، یعنی اللہ کی ذات۔ شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان یعنی ماہ الہی۔ جیسے کہ شعبان حضور کا نام ہے، حضور کے پاک ناموں میں سے ایک نام حضور کا شعبان ہے۔ شعبان حضور کا نام ہے۔ شہر و شعبان یعنی حضور کا مہینہ، شہر و رمضان یعنی اللہ کا مہینہ۔ بلکہ ہمارے امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ نہ کہا کرو کہ جاء رمضان و ذہب رمضان، یہ نہ کہا کرو رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہو جاء شہر رمضان و ذہب شہر رمضان۔ مہینہ رمضان کا آیا تھا اور مہینہ رمضان کا چلا گیا۔ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ آیا اور اللہ چلا گیا۔ بلکہ یہ جو نام ہے محمد رمضان، یہ غلط نام ہے، یہ نام ہی غلط ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا محمد اللہ۔ محمد تو اللہ نہیں ہے، محمد رمضان غلط نام ہے۔ بہرحال لکھا جو رکھا اور لکھا گیا ہے وہ نیک نیتی سے ہی بیچاروں نے رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کیونکہ دور ہے روشنی کا تو کریکشن بھی ہو جائے، اصلاح ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اللہ علی بھی نہیں ہو سکتا نا، اللہ علی کیسے ہوگا؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ اگر تصور اس میں آئے یہ کہ اللہ سے مراد آپ علی کو اللہ لے رہے ہیں تو وہ تو پھر جائز نہیں رہے گا نا۔ ہاں، وہ توجیحات سے تو پھر محمد رمضان بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تصحیح بھی آج ہو جائے، یہ ذہن میں کم از کم آپ کے ایک بات یہ واضح ہو جائے کہ کچھ نام ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، مگر رکھنے والوں نے بیچاروں نے کوئی بدنیتی سے نہیں رکھا۔ ہمارے گاؤں کا ایک بابا رمضان تھا، وہ بھی حاجی محمد رمضان، ساری زندگی تقریباً 100 سال کے اوپر عمر ہوئی، اس کی ساری زندگی گزر گئی لوگوں کو رمضان کے لیے اٹھاتے ہوئے، اور وہ کہتا تھا کہ محمد رمضان کہہ رہا ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے اٹھو۔ پہلے وہ ڈھول مارتا تھا، پھر میرے دادا جی نے اس کو ڈانٹا وانٹا کچھ عرصے کے بعد، ان کو بھی بعد میں سمجھ آئی بیچاروں کو، دادا کو کسی عالم نے آ کے ڈانٹا کہ سنائے ملک جی آپ ڈھول کی تاپ پہ روزے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں رکھتے تو قبلہ ایسے ہی ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو حرام ہے۔ تو پھر وہ محمد رمضان کو کہا ڈھول نہ بجایا کرو، وہ پھر کوئی 2 تھالیاں لے کے بجاتا تھا ایسے، تو کہتا تھا کہ اٹھو رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان یعنی محمد رمضان آ گیا، اور ادھر بھی رمضان آ گیا یعنی روزے آ گئے، روزے آ گئے۔ تو وہ ایک صاحب تھے، ایک رمضان حلوائی بھی تھے، رمضان حلوائی، ہم ان کا حلوہ کھانے کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک بات آج پہلی سمجھ میں آ گئی ہمارے بھائی بہنوں کی خدمت میں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور رمضان کا معنی ہے جلانے والا۔ رمضان کو کیوں جلانے والا کہتے ہیں؟ لأن الرمضان یرمض الذنوب، کیونکہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں گناہوں کو جلا دینے والا، کہ جب جل کے راکھ ہو جائیں گے تو واپس جیسے لکڑی نہیں آ سکتی ایسے گناہ بھی واپس نہیں آ سکتے۔ یہ پہلی بات، پہلا ادب سمجھ لیں
اب ادب یہاں سے شروع ہوگا کہ جب آپ رمضان کو کہیں گے تو کہیں گے رمضان کا مہینہ آیا، یا پھر آپ مضاف مقدر فرض کریں گے، ایک چیز ذہن میں رکھیں گے، جیسے مثلا یہ ایٹیکیٹس میں ہے کہ جب رمضان آئے تو آپ کہیں رمضان مبارک، دوسرا کہے رمضان کریم، تو اس میں اب رمضان کہا ہے آپ نے، شہر رمضان کیوں نہیں کہا؟ تو آپ فرض یہی کر رہے ہیں کہ مراد اس سے رمضان کا مہینہ ہے، اس سے مراد اللہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ آگے سے کہیں گے کہ رمضان کے مہینے کی مبارک ہم کریم کی صورت میں دیں گے۔ ہمارے ایک استاد تھے، مثلا وہ کہتے تھے جب کوئی کہتا تھا رمضان مبارک تو وہ فرماتے وعلیکم مبارک، جیسے وعلیکم السلام ہوتا ہے، وعلیکم مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو رمضان کی گویا مبارک ہے، یہ دوسرا ادب ہے رمضان کا۔ تیسرا ادب یہ بھی ہمارے ائمہ کے ارشادات سے ہے کہ رمضان کے آنے پر ہم خوش ہوں، جوش و خروش ہوں، جانے پر ہم حزین و مغموم ہوں۔ ہمارے ائمہ جب رمضان آ رہا ہوتا تھا تو جشن کا ساماں کرتے تھے، جب رمضان جا رہا ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ وہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے کہ جس میں ایک آیت پڑھتے تھے تو ختم قرآن کا ثواب لکھا جاتا تھا، سانس لیتے تھے تو تسبیح لکھی جاتی تھی، سوتے تھے تو عبادت لکھی جاتی تھی، ایک فریضہ ادا کرتے تھے تو 70 فریضوں کا ثواب لکھا جاتا تھا۔ اللہ میزبان تھا، ہم اس کے مہمان تھے۔ 11 مہینے بندے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، رمضان میں اللہ بندوں کو تلاش کرتا۔ للصائم فرحتان، امام فرماتے ہیں، حدیث رسول بھی یہی ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں، اس کو کنسیڈر کر لیں۔ نمبر 1، ایک خوشی ہے فرحت للافطار، ایک تو خوشی ہے جب افطار کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ روزہ کھل گیا، دوسری فرحت عند لقاء ربہ، کہ ادھر وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ سے مل رہا ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت ہے روزے کا افطار کرنا۔ آداب رمضان میں ایک ادب یہ نوٹ کر لیں جس پر خاص توجہ کرنی چاہیے، عموماً ہمارے بہن بھائی اس سے غافل ہیں۔ 12 بجے سحری کھا لی اور سو گئے، اب اٹھے نماز فجر کے قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے، آدھی نیند میں آدھی بیداری میں فجر پڑھی اور پھر سو گئے۔ لقمت السحور، سحری کا کھانا، اور سحری کے وقت کی لذت سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، قرآن نے کہا مومن وہ ہیں، جنتی وہ ہیں، متقی وہ ہیں کہ جو سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرے۔ جو وقت سحر ہے، ڈان کا وقت، یہ استجابت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے مستعد ہوتے ہیں حاجت روائی کے لیے، استجابت دعا کے لیے، اللہ ریڈی ہے استغفار قبول کرنے کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے۔ تو جس وقت میں ہماری دعائیں قبول ہونی ہیں، اگر وہ وقت ہم سونے میں گزار دیں، جس وقت میں ہماری دعائیں مستجاب ہونی ہیں، وہ وقت اگر ہم نے خراٹوں میں گزار دیا، گناہ تو کوئی نہیں ہوگا، گناہ بالکل کوئی نہیں، مگر جو لذت تھی سحر کی، جو ایک نعمت تھی مغفرت کی، جو ایک گارنٹی تھی دعاؤں کی قبولیت کی، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ تو یہ خاص طور پر اس سال کے رمضان میں ایجنڈا بنا لیں، گھر والوں سے طے کر لیں کہ اٹھنا ہے سحری میں، سحری میں اٹھنا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، سحری کی دعا بھی پڑھ لیں۔ ایک چھوٹی دعا ہے
एक बड़ी दुआ है, एक और बड़ी दुआ है, एक और बड़ी दुआ है, या मफजाई इंद कुर्बती, उस ये छोटी भी है बड़ी भी है। और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मनी असारो का बहा, ये ज़रा बड़ी है। और उसके बाद बड़ी है दुआए अबू हमजा फमाली, जो कि एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। उनको इमाम ने ये इसमें आज़म इनायत किया था। ये इसमें आज़म है, इससे यकीनन दुआ कबूल होती है। हर रोज ना पढ़ सके तो जिंदगी में कम से कम रमजान की किसी एक सहर में पढ़ ले। तो ये आदाब रमजान में। फिर नियत है, अक्सर लोग नियत भूल जाते हैं। अगरचे वर्बली नियत करना वाजिब नहीं है, सिर्फ यही कि आप रोजे के लिए उठे काफी है। मगर अगर आप वर्बली नियत करना चाहें तो यूं करेंगे, वबिस्सौमे गदिन मिन शहर रमज़ान नवैतु कुर्बतन इलल्लाह। कल का रोजा जो आने वाला कल है, उसके रोजे की नियत कर रहा हूं, जो रमजान का रोजा है, और कुर्बतन इलल्लाह नियत कर रहा हूं। चाहे तो आप पहली को ही पूरे महीने की नियत कर लें, वो भी जायज है। चाहे तो आप हर रोज अलग अलग नियत करें, यह भी रवा है। नियत करना मुस्तहब है, वर्बली अल्फाज के साथ नियत करना मुस्तहब है, जैसे नमाज में भी। आदाब रमजान में एक दुआए इफ्तार भी है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु व बिका आमनतु। ये दुआए इफ्तार है। और आदाब रमजान में एक अदब यह भी है कि सूरतुल क़द्र पढ़ें, इंद सहर भी इंदल इफ्तार भी, सहरी के वक्त भी और इफ्तार के वक्त भी सूरतुल क़द्र की तिलावत करें, क्योंकि इसकी शान नुज़ूल रमजान ही के अंदर है, इसमें लैलतुल क़द्र का जिक्र है। एक और अदब यह है कि सूरतुल क़द्र की ऑफ्टनली, अक्सर दौरान रमजान तिलावत करते रहे। हत्ता कि मैंने बाज़ रिवायात में तो यह देखा है कि डेली 1000 दफा सूरतुल क़द्र पढ़े, अगर पढ़ सके तो 1000 मरतबा सूरतुल क़द्र, नहीं तो कम से कम चलते फिरते सूरतुल क़द्र की तिलावत करते रहे। इसी तरीके से आदाब रमजान में एक चीज ये भी है, सुन्नत है बल्कि ये, कि आप रोजा जब इफ्तार करें तो मगरिबैन के बाद इफ्तार करें, ताकि पांचों नमाजें आपकी रोजे के साथ हो जाए, पांचों अल्लाह के मेहमान बन के रोजे के साथ। हालांकि है तो थोड़ी सी जहमत, मगर वो 10-15 मिनट की कोई इतनी खास लंबी चौड़ी जहमत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मौलाना हो मेरे जैसे तो वो तो 10 मिनट में सब कुछ लपेट देते हैं, मगरिब से लेके ज़ियारत तक। अलबत्ता अगर ढीले ढाले कोई आगा हो तो अब वो थोड़ा सा ज़रा देर कर सकते हैं। तो तेज़ आगा जैसे हमारे बैठे हैं तो फटाफट इंशाअल्लाह, क्योंकि हुक्म भी यही है कि जब लोग रोज़े से हों तो फिर आप कोशिश करें कि लंबी सूरतें ना पढ़ें। एक मरतबा मैं रमज़ान में कहीं गया हुआ था, अभी तजर्बा नहीं था शाह जी, नई नई पेश नमाजी थी, तो शौक भी था नया नया, लंबी लंबी सूरतें भी याद ताज़ा ताज़ा ही की थी। तो पहले दिन ही जनाब लंबी सूरतें पढ़ दी। इशा के बाद हम फारिग हो गए। वो जो नवाब साहब थे उन्होंने कहा कि भाई बेटा, हमने तो समझा था कोई समझदार मौलवी आएगा, आपने तो आज ही हमारा फरकत निकाल दिया, तो आप बेहतर है कि तशरीफ़ ले जाए। खैर मैं अपना सामान वामान बांधने लगा तो थोड़ी देर में उनको बेचारों को रहम आ गया। उनकी कोई बेगम साहिबा जो थी ना, वो हमारी माँ के बराबर ही थी, माँ से भी बल्कि बड़ी थी। उन्होंने कहीं देख लिया बालकोनी से, तो उन्होंने कहा बच्चा है, कोई बात नहीं, इसी तरह ये कल बड़ा बनेगा, आप घबराएं नहीं, कोई बात नहीं, उनको समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी, ले आओ घर ले आओ। खैर वो रात को नवाब साहब ने कहा कि भाई आपको अम्मा याद कर रही है। तो मैं जब घर गया तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, आप नए नए आए हैं, ऐसे करें कि छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करें, मेरे शौहर जैसे ढीले ईमान वाले बहुत मोमिन होते हैं। तो अब उससे मुझे समझ आई वो माँ जी से कि भाई ये लंबी लंबी सूरतें नहीं पढ़नी, यहाँ पर ये कोई अपनी हाफजे का शो ऑफ नहीं करना, बल्कि लोगों का बेचारों का भी ख्याल रखना है। खैर अजीब इत्तेफाक ये भी हुआ कि
ایک ज़माने में फिर जब अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त दे दी, नाम बड़ा हो गया हमारा, तो उन्होंने सुना, वही बाबा जी ने, नवाब साहब ने, कि भाई आजकल अलामा साहब बड़े टॉप पे जा रहे हैं। तो वो हमारे वालिद के पास आए, उनको ये पता नहीं कि उनका मेरा क्या रिश्ता है। हमारे वालिद साहब के पास आए मदरसे में, उन्होंने कहा कि भाई वो एक अलामा साहब हैं, सखावत हुसैन सदरालवी नाम है उनका, आप उनको जानते हैं, कुछ आपसे सिफारिश करवानी है, एक मजलिस उनसे पढ़वानी है। तो मैं इत्तेफाक से अंदर सो रहा था मदरसे के अंदर, मैं वो नमाज के बाद जो मेरी आदत है ना सोने की, वो 8-9 बजे का टाइम था, मैं अंदर सो रहा था। तो उन्होंने कहा बैठिए चाय वाय पिए, तो आपको ठीक है सिफारिश कर देंगे, कोई बात नहीं, नहीं आपका कोई, आप जानते हैं उनको, मेरे वाले सब भी ज़रा जौली तबीयत के थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, आप बैठे तो सही ज़रा। खैर वो बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद मैं उठा, तो उठ के जो मैं आया तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि वो जो अल्लामा साहब है ना, वो सुना है कि वो बहुत पैसे लेते हैं। शोहरत तो हमारी आज भी यही है शाह जी, यहाँ पर भी शोहरत तो यही है कि $1000 लेते हैं। जी हाँ, वैसे देना तो 1000 से भी ज़्यादा चाहिए जो हमारी मेहनत है, मगर शोहरत यही है कि 1000 लेते हैं, हालांकि लेते वैते नहीं है 1000। खैर तो हम सामने बैठे हुए हैं, अब वो हमें कह रहे हैं कि जनाब वो अल्लामा सखावत हुसैन सदरालवी का एक नाम है, उनसे हम मजलिस पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई यही है अल्लामा साहब, और ये आपकी मजलिस पढ़ देंगे, तो हुजूर कितने पैसे लेंगे? तो वालिद साहब ने कहा भाई इनसे पूछ लीजिए। मैंने कहा बुजुर्गवार मैंने तो पैसे कभी तय नहीं किए, ये वो। तो उसके बाद वो कहने लगे कि इस नाम का एक बच्चा हमारे पास आया था, हमारी बेगम ने उसको बेटा बनाया हुआ था। मैंने कहा यही वही बच्चा है जिसको आपने पहले दिन फारिग कर दिया था। तो अब ये भी एक किस्म की एक दर्स भी हमें मिल गया कि अल्लाह इस तरीके से इज्जत भी दे देता है कि वही बंदा फिर कल आया, उसने कहा जी मजलिस पढ़ दें फलां। खैर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए। तो आदाब रमज़ान में ये है कि 5 नमाजें आप जो पढ़ें वो रोज़े के साथ पढ़ें। वैसे भी मोमिन को चाहिए कि नमाज बाजमात पढ़े, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे जमात की नमाज के साथ 5 नमाजें। माशाल्लाह आपके यहाँ तो 5 नमाजों का एहतमाम हो गया है, अगरचे बड़ी बड़ी मस्जिदें करोड़ डॉलर की जो हैं उनमें 5 वक्त की नमाज नहीं होती रमज़ान में, बल्कि फजर के वक्त उल्लू बोल रहे होते हैं। मगर आपकी छोटी सी मस्जिद है, अल्लाह का एहसान है, अहलियान ब्रुकलिन की मेहरबानी से, न्यूयॉर्क वालों की मेहरबानी से माशाल्लाह यहाँ 5 वक्त की नमाज कायम है। तो इससे भी आप इस्तेफादा करें कि 5 वक्त की नमाज कम अज़ कम जमाअत के साथ पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पर रमज़ान अल मुबारक में। आदाब रमज़ान में एक चीज़ और भी समझ लें कि कम अज़ कम रमज़ान में एक रमज़ान ज़िंदगी का ऐसा रखें कि जिसमें आपने सारे रमज़ान में सुन्नती नमाजों के साथ फ़र्ज़ नमाजें पढ़ी हों। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक रमज़ान के लिए आप अहले सुन्नत बन जाएं, वो नहीं मज़हब नहीं, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत रसूल बन जाएं कि आप सुन्नती नमाजें, मसलन फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 8, असर से पहले 8, मगरिब के बाद 3, इशा के बाद बैठ के 2 या खड़े होकर 1। तो ये कम से कम जो नमाजें हैं जो हमारे आइम्मा अतहार ने शिया की निशानियां बताई हैं, उनमें फरमाया कि शिया हमारा वो है जो 51 रकअत नमाज पढ़ता होगा। 51 रकअत, 17, 34 और 11, 51 रकअत जो नमाज पढ़ता होगा, यानी 11 तहज्जुद की मिला लें और बाकी जो सुन्नतें सारी मिला लें तो 34 और 11 कितनी बनी? टोटल 17 तो हो गई वाजिब। सुन्नत कितनी हो गई? 2 फजर की, 8 8 16, 2 18, 3 21 और इशा की 22, एक उसकी शुमार कर लें, और उसके बाद 11 तहज्जुद की। तो टोटल ये 51 रकअत नमाज बनती है। ये कम से कम शिया, हमारे शिया की पहचान ये है कि वो साल भर 51 रकअत पढ़ता है। तो कम से कम एक रमज़ान में तो शिया 51 पढ़े, सारी की सारी सुन्नतें एक रमज़ान तय कर ले कि मैं पढ़ूंगा कम अज कम। अच्छा, आदाब रमज़ान में एक चीज़ और सुन लीजिए, कम अज कम एक ख़त्म कुरान है, कम अज कम एक ख़त्म कुरान, और सुन्नत है 6 ख़त्म कुरान। हर रोज़ 6 ख़त्म कुरान करने हैं। अब बना लीजिए कि हर रोज़ कितने सिपारे बनेंगे,
6 ख़त्म कुरान सुन्नत हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 5 सिपारे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। अहद की बात है शाह जी, मैंने अहद किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, कैसे? मैंने उनको पढ़ के दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा देख लीजिए 27 को मैंने सारे 6 के 6 कुरान ख़त्म कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन, बल्कि शाह जी मैंने एक दिन में 14 सिपारे पढ़े। जब काम कोई नहीं तो फिर कुरान पढ़े, कुरान ही पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे जो बेरोजगार हैं, अब कल ही एक साहब आए थे, शाह साहब गुस्सा बहुत करते हैं, जाब नहीं 600 का जाब मिल गया, कल रात को ही जाब पे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई मस्जिद में नहीं आएंगे तो जाब कहां से मिलेगा? बाहर बैठे रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार, अल्लाह के घर आए हैं, पहले दिन आए हैं, जाब मिल गया। 300 का ढूंढ रहे थे, 600 का मिल गया। गैस स्टेशन पे कल रात खड़े हो गए, जाब मिल भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत से मिलता है। जाब नहीं है तो कम से कम कुरान ही पढ़े, फिर और कुछ नहीं तो कुरान पढ़े। आदाब में यह भी है। आदाब रमजान में एक जरूरी बात और समझ लीजिए, वो ये है कि जो हमारी डेली की नमाजें हैं, इनके अलावा हर रोज की अलग अलग नमाजें, हर 30 दिन की अलग नमाजें हैं। ये मफातिउल जिनान के अंदर सारी लिखी हुई। एक तो नमाज वो है कि 2 रकत नमाज है, अगर कोई शख्स पढ़ ले हर रोज इशा के बाद, सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। इस एक नमाज से अल्लाह 70,000 गुनाहों को माफ कर देता। सिर्फ एक नमाज। एक जो तस्बीह है सुबहान मन हुआ हफीजुन, एक तस्बीह, या अलियो या अजीम अल्लाहुम्मा अदखिल अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमजान। एक दुआ ऐसी है ये शहर रमजान वाली कि हुजूर ने फरमाया 40 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, सिर्फ एक मरतबा अगर ये दुआ पढ़ ले। तो आदाब रमजान में कम से कम इन दुआओं को, दुआए जोशन कबीर है, दुआए मुजीर है, दुआए तौबा है, शबहाए मुक़द्दसाए लयालिल क़द्र में भी जो नमाजें हैं, इसी तरीके से जो कल खुतबे में भी अर्ज किया था, कम से कम जिंदगी में एक रमजान ऐसा करार दे दें कि जिसमें 1000 रकत पड़ी हो। पहली जो 20 है उनमें 20, पहली 20 रातों में, आखिरी 10 में 30, और 3 लयालिल क़द्र में 100 1000 रकत। दुआए नमाज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, नमाज बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, नमाज जाफर तैयार भी रिकमेंडेड है इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में। आदाब रमज़ान में एक यह है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। एक मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह 70 लिखता है। इसी तरीके से कसरत से दुरूद पढ़ें। हुजूर ने फरमाया दुरूद पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन मैं शफाअत करूंगा। एक और आदाब रमज़ान में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तोहफा है, उसका नाम है दुआए इफ्तिताह। दुआए इफ्तिताह इसको जरूर पढ़े, कम से कम सुन ले, कोई पढ़े अब सुन ले। बहुत ढीला पढ़ने वाला भी अगर हो, बहुत ढीला, तो आगा कितने मिनट में पढ़ेगा? 10 मिनट। बहुत ढीला भी 10 मिनट। मेरे जैसा सुपर स्टाफ तो 4 मिनट में पढ़ देगा, 3 मिनट में मैं तो पढ़ दूंगा। उस दिन कुरान पढ़ा था ना, याद है ना आपको, वो दरिया अब्बास में 3.5 घंटे में बताएं माशाअल्लाह तकरीबन आधा कुरान, आधे से कम थोड़ा सा कुरान पूरा पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी गलती के, अल्लाह के फजल करम से। जी हाँ, ढीले से ढीला भी 10 मिनट पढ़ेगा। 10 मिनट इमाम को दे दें आप। और पढ़ने वालों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, आगा हैं जैसे ये सईद हसन है, पढ़ने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि आप भी बहुत लंबा ना खींचें ताकि लोग भाग ना जाए, उकता ना जाए। आप भी ऐसी अट्रैक्शन, हमारे राजा साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत लंबा नहीं, दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। ऐसे ना हो कि हर्फ भी कट जाए, ऐसे ना हो कि लोग उकता जाए, क्योंकि इबादत में उकताहट अच्छी चीज नहीं। लोगों को, हुजूर का यही तरीका था। देख लीजिए, हुजूर ने कभी सूरतुल असर पढ़ी, कभी सूरतुल कौसर पढ़ी, कभी नमाज में सूरह यासीन भी पढ़ी। जब देखा कि आज हट्टे कट्टे हैं, खा पी के आए हैं, तो यासीन भी पढ़ दी। और जब देखा कि नहीं आज जरा लूले लगड़े हैं, तो कौसर और वलासर से खुद हाफिज कर दिया। तो हुजूर का तरीका यह था कि ज्यादातर हुजूर
जहमत नहीं बनाते थे इबादत को। इबादत जहमत का नाम नहीं है। अब 2-3 आदाब और जिक्र कर लें और इंशाल्लाह आपकी जहमतों को खत्म करें। एक अदब जो रमजान अल मुबारक का है वो है कसरत से कुरान का पढ़ना। जैसे मैं अर्ज करता हुआ आया हूं हमेशा के लिए, समझ कर दें, सहरी का खाना, दुआए सहर का पढ़ना, अदइया सहर, दुआए इफ्तार, दुआए इफ्तिताह, मुजीर, जोशन कबीर वगैरह, जोशन सगीर। इसी तरीके से दुरूद का कसरत से पढ़ना। एक और अदब जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, खत्म कुरान करके 14 मासूमीन की खिदमत में हदिया करें और उसका सवाब अपने मरहूमीन को भेजें। उसका सवाब मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 हस्तियों की वजह से। शुरू करें रमजान से, कुरान पूरा खत्म करें और इन 14 हस्तियों की खिदमत में वक्फ करें, हदिया करें और उसके बाद कहें कि जो सवाब हो उनके वसीले से वो मेरे फलां फलां फलां, बेशक आप 100 मरहूम का नाम लिख लें, इंशाल्लाह 100 के 100 को जाएगा। इसलिए कि एक आयत का जब सवाब खत्म कुरान के बराबर है तो 6000 से ऊपर तो आपके कुरान खत्म हो जाएंगे। अगर एक कुरान ही आपने पढ़ लिया, 6000 से ज्यादा तो आपके मरहूम ही नहीं होंगे, 6000 से तो कम ही होंगे। इसी तरीके से एक दुआए जिब्रील है, अल्लाहुम्मा रब्बन नूर, ये जिब्रील लाए थे हुजूर के लिए और कहा था कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का कोई फर्द भी अगर ये दुआ पढ़ेगा उसकी 10 हाजतें यकीनन पूरी हो जाएंगी। या अजीमों की जो दुआ है, अंता इलाही ला इलाहा इल्ला ला इलाहा ली गैरुक, इस दुआ को पढ़ने से हुजूर ने फरमाया गुनाह ऐसे माफ हो जाते हैं जैसे इंसान शिकम मादर से बाहर आया। हर रात रमजान में गुस्ल सुन्नत है, हर रात गुस्ल करना है, सुन्नत है। ये आदाबे रमजान के अंदर है। बस अब ये तकरीबन जो आदाब आज की हद तक अर्ज करना चाहता था खत्म हो गए। सिर्फ 2 पॉइंट और सुन लीजिए। आदाब रमजान में यह है कि सिर्फ फिजिकली कंट्रोल ना करें, स्पिरिचुअली भी कंट्रोल करें। यानी सिर्फ पेट का रोजा ना हो, आंख का भी रोजा हो, कानों का भी रोजा हो, जबान का भी रोजा हो, दिलो दिमाग का भी रोजा हो, फिक्र का भी रोजा हो। इंसान अपने आप को मुकम्मल कंट्रोल में रखे, अपने नफ्स को भी, ख्वाहिशात नफसानी को कंट्रोल, गुस्सा ना आए, गुस्सा ना करे। कल मैंने खुतबे जुमा में कहा तो आपके जो मौलाना साहब हैं, हाजी इम्तियाज शाह साहब के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने कल मुझे कहा कि आपने खुतबा अधूरा दिया है। मैंने कहा कैसे? कहेंगे आप ये भी कह देते ना कि गुस्सा दिलवाएं भी ना। तो मैंने कहा ठीक है, आप कल से शुरू होंगे इंशाल्लाह, आप कसर निकाल लीजिएगा, कह दीजिएगा भाई जो उन्होंने अधूरा दिया था मैं पूरा करने के लिए आया हूं कि गुस्सा करें भी ना और गुस्सा दिलाएं भी ना। बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसे ना करें कि गुस्सा आ जाए किसी को, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुस्सा दिलाएं भी ना, गुस्सा करना भी गुनाह है, गुस्सा दिलाना भी गुनाह। ये जाहिर है वो इंशाल्लाह 15 दिन में आपको एक्सपेरिमेंट हो जाए अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो ये एक और आखिरी नुक्ता, एक हदिया मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और इसी के साथ आज का दर्स इख्तिताम पजीर हो रहा है। आपसे दुआ का भी तालिब हूं कि पूरे महीने में इंशाअल्लाह मैं भी आपके लिए दुआगो हूं, आप भी मेरे लिए दुआगो रहिएगा। ये देखिए एक तोहफा है, ये किबला आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब नकवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे मज़हब के मुज्तहिद भी थे, मेरे वालिद साहब किबला के उस्ताद भी थे, हमारे बुजुर्ग थे। ये उनसे मिला था, मैं जो आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। उन किबला ने यह फरमाया था, इसको मेरे वालिद ने भी आजमाया है, मैंने भी आजमाया है, मेरे शागिर्दों ने भी आजमाया कि 7 खत्म कुरान आपने करने हैं रमज़ान में बिस्मिल्लाह के। 7 खत्म कुरान इस तरीके से देखिए, ये उंगली शहादत की आप रखेंगे पहली सत्र पर, जैसे ये बिस्मिल्लाह है सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा।
इस तरीके से हर सत्र पे, हर आयत नहीं, हर सत्र पे ये रखते रखते आखिर तक आएंगे हम। ये सूरत वन्नास, बस सिर्फ आपने सत्र पे उंगली फेर के ये कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क़िबला ये फरमाते थे कि इस उंगली में अजीब ताकत आ जाएगी। वो ताकत ये होगी कि आप अगर उंगली का इशारा यूं कर देंगे तो पहाड़ रास्ते से हट जाएगा, दरिया रास्ता दे देगा, हादसात दूर भाग जाएंगे, बीमारियां दफा दूर हो जाएंगी, शर हासदीन चला जाएगा, जादू चला जाएगा, सारी बीमारियां, नजर बद, फुला सब चली जाएगी। और ये हमने आजमाया है, मैंने भी खुद आजमाया है इस चीज को। यहीं पर एक अहले सुन्नत की फैमिली थी, हमारे एक मलिक साहब हैं, वो मुझे ले गए, यहीं पर दर्स में तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी है और उनको जिन है, बेटी को जिन है, और उन्होंने हर पीर मुर्शिद को दिखा लिया है, हज़ारों डॉलर भी खर्च कर लिए हैं, वो जिन भागा नहीं। मैंने कहा फिक्र न करें, मुझे तो जिन्नों की तलाश है। ये शादी को भी पता है, जफर शाह साहब को पता है, मुझे तो जिन्नों की तलाश है। मुझे अगर कोई बताए किसी को जिन है तो मैं तो हंस के जाता हूँ कि मुझे तो तलाश है उनकी। मैंने कहा अभी चलते हैं। हमने यहाँ गाड़ी उनके साथ ही बैठे, यहाँ कोई सामने उनका घर है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 2-2.5 मिनट की ड्राइव पे है। हम वहाँ गए, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ मैंने ये पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन भाग गया। वो मलिक साहब हैं, मौजूद हैं, मलिक शाहिद, आप जानते हैं उनको, आप उनसे पूछ सकते हैं, ऐसे जिन भागा। अब वो बच्चों वाली है बच्ची, कब से जिन का नाम नहीं। तो वो जो बिस्मिल्लाह आप बिस्मिल्लाह का ख़त्म आप कर लेंगे ना, रमज़ान में करना है, अलबत्ता रमज़ान के बाद नहीं है, ये सिर्फ रमज़ान के लिए। इसलिए मैं वक्त पे बता रहा हूँ ताकि आप कर लें अल्लाह के फजल करम से। फिर आप अगर यूं करेंगे ना तो आगा मुख्तार हाजिर हो जाएंगे। देख लीजिए आप, ये देखिए आप देखेंगे, ये देखिए आप, इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल गायब बंदा हाजिर हो जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल इसे गायब भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, इससे गायब भी हो सकता है। जी हाँ, बल्कि हमारे सईद हसन ने कहा कि हमने आपके बारे में सुना है कि यहाँ कुछ आपके पास मखलूक है। तो मैंने कहा आपको आजमाना है तो मैं हाजिर हूँ। कहेंगे नहीं। मैंने कहा बाकी तो अक्सर आजमा चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह हाजिर है, फिक्र ना करें, ऐसा आजमाएंगे कि रहे अल्लाह का नाम। वो मलिक अल्ताफ, अल्लाह उनको सेहत दे, बेचारे आजकल वो अस्पताल में हैं काफ़ी अरसे से, 1 महीना और बेचारे अस्पताल में रहेंगे, दुआ करें उनके लिए। ईद के बाद आएंगे, अल्लाह उनको सेहतमंद करे। वो यहाँ पर उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा, तो एक दफ़ा मैं कुछ गुस्से में आ गया, तो मुझे कहते हैं कि भाई अलामा साहब आप जो है ना बड़े आज गुस्से। मैंने कहा भाई मैं आपको ठीक कर दूंगा। उसके बाद 8-9 दिन किसी मखलूक ने जो उन्हें तंग किया है, रहे अल्लाह का नाम, 8-9 दिन सोने नहीं दिया उनको। जब वो सोए तो वो मखलूक आके उठा दे, बाहर जाए तो कुछ भी नहीं। तो होती तो है मखलूक, तो भारत ये यहाँ पर भी है मखलूक इंशाअल्लाह, जी है बिल्कुल। हाँ देखें आप, सामने देख लेना, आप देख लें, मोइज़े देख लें आप, आगा मुख्तार कोई है हाजिर होने वाले, देखिए क्या कैसे हाजिर हो गए। तो वो हाजिरी जो कहते हैं ना, हाजिरी आपने सुना होगा, पीर हाजिरी करते हैं, वो हाजिरी असल में यही होती है कि कैसे हाजिरी हो गई है कि गायब बंदे को हाजिर कर लेते हैं। तो ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमाइए। समअप हो रहा है दर्स। आज के दर्स का खुलासा ये है, रमज़ान अल मुबारक में एक दूसरे को मिलना है तो रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम कहना है। रमज़ान में फिजिकल कंट्रोल के साथ स्पिरिचुअल कंट्रोल करना है। ये तज़किया नफ्स का महीना है, ये तौबा व इस्तिग़फ़ार का महीना है, ये चैरिटी का महीना है। इसमें सदका व खैरात, ज़कात व खुम्स, अतियात व सदक़ात देने हैं, सिला रहमी करनी है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से रहना है, कोशिश करनी है मस्जिद में आने की, घरों में रोज़ा कुशाइयाँ नहीं करनी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर इफ्तार पार्टियों में नहीं जाना, सोशियोलॉजी में वक्त नहीं गुजारना, मस्जिदों में आना है तो सफाई का भी ख्याल रखना है, मस्जिदों में आना है तो खुशबू लगा के आना है, माउथ वाश कोई मना नहीं है। स्कूल जाएं बच्चे, कॉलेज जाएं, जॉब पे जाएं तो बाकायदा माउथ वाश करके जाएं, बिल्कुल इजाज़त है, कोई उसमें कबाहत नहीं है। इसी तरीके से आपने सुन्नत नमाजें भी
واجب کے ساتھ پڑھنی ہے، واجب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، 1000 رکعت بھی پڑھنی ہے، 2 رکعت بھی ہر رات پڑھنی ہے، یا علی یا عظیم بھی پڑھنی ہے، اور جو اللہم رب شہر رمضان والی دعا بھی پڑھنی ہے، دعائے مجیر بھی، دعائے جوشن کبیر بھی، دعائے توبہ بھی، نماز جعفر طیار بھی، نماز مولا کائنات بھی، نماز فاطمۃ الزہرا بھی، اور تہجد کی نماز بھی۔ اور اسی طریقے سے ایک رمضان ایسا ہو جس میں ختم قرآن 6 نہیں تو کم از کم 1 تو ہو جائے۔ ایک ختم قرآن، ہمارے ائمہ تو 1.25 قرآن ڈیلی ختم کرتے تھے، رمضان میں 1.25 قرآن ڈیلی ختم فرماتے تھے۔ ہمیں 1 سپارہ تو کم از کم پڑھنا چاہیے، سپارہ 1.25 سپارہ پڑھنا چاہیے۔ بچوں کو بھی لے آئیں، جب سیشن ہوں، جب قرآن ہو تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے اس میں لے کر آئیں، جماعت کی نماز میں بھی حاضر ہوں، دعا افتتاح کو بھی اگنور نہ کریں، اور اسی طریقے سے مولانا کے لیکچر کو بھی اگنور نہ کریں، اور خوش اخلاق رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور پولائٹنس اس میں رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مائل بکرم ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک خرما کے ٹکڑے سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا لیں، یا ایک شربت، ایک گھونٹ پانی سے بھی، تو اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اس بندے پر۔ اس لیے افطار کا بھی اہتمام کریں۔ ایک افطار مومن کا کرانے پر 30 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب درج کیا جاتا ہے، اور تمام گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی رمضان میں نہ لے سکے تو پھر سال پورا صبر کرے یا پھر عرفات پہنچے۔ تو یہ مقدس مہینہ آ گیا ہے، اللہ کی میزبانی کا مہینہ آ گیا ہے۔ اسی میں تورات نازل ہوئی، اسی میں زبور نازل ہوئی، اسی میں انجیل نازل ہوئی، اسی میں ابراہیم کے صحیفے نازل ہوئے، اسی کے اندر قرآن نازل ہوا، اسی کے اندر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سورۃ القدر کی تلاوت کرتے رہیں، چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں، سورۃ القدر پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ختم قرآن بھی کریں اور بسم اللہ کے ساتھ ختم بھی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا رمضان قرار دے سکیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے، رمضان المبارک کی برکتوں کا، نعمتوں کا، عنایتوں کا، مغفرتوں کا ہم سب کے اوپر رحم فرما۔ اس رمضان المبارک کی عبادتوں کو، روز و نمازوں کو ہم سے قبول فرمانا، اور ہمیں رمضان میں روزہ رکھنے اور نماز ادا کرنے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر۔ بار الہ اس مہینے میں تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے انہیں کھلا رکھنا۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، انہیں قیامت میں ہمارے لیے بند رکھنا۔ شیاطین ڈیٹین ہو جاتے ہیں رمضان میں، اریسٹ ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں۔ 11 مہینوں میں ہم پہ اسے اور شیاطین کو مسلط نہ فرما، شر حاسدین سے محفوظ فرما، شر اعداء سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، حرص و طمع سے محفوظ فرما، حسد و لالچ سے محفوظ فرما، ناگہانی موت سے محفوظ فرما، حادثات سے محفوظ رکھنا، قبیح امراض سے محفوظ رکھنا، بار الہ موت مفاجات سے محفوظ رکھنا، عذاب موت و عذاب قبر و عذاب حشر سے محفوظ رکھنا، پل صراط پہ آسانی سے گزارنا، میزان میں ثقل اور وزن عطا فرمانا، ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی پیدا نہ فرمانا، ہماری نسلوں میں کوئی دشمن رسول پیدا نہ ہو، ہمارے نسلوں میں کوئی دشمن عزاداری حسین پیدا نہ ہو، ہمارے امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے راضی اور خوشحال فرما۔ آج کے درس میں جتنے بھائی تشریف لائے ہیں بار الہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ آج کے درس کے عوض رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول کرنا۔ المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک، القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا، حوزہ علمیہ نیو جرسی، اور تمام مراکز حسینیہ پاسمور وغیرہ جتنے بھی مراکز دین ہیں، سب میں جو خدمات انجام دیں گے علماء، مؤمنین، والنٹیئرز، ان کو قبول فرمانا۔ بار الہ آج کے اس درس کا ثواب جناب سید سخی حسین شاہ صاحب کے مرحومین کو ایصال فرما، حاجی امتیاز حسین شاہ صاحب کے مرحومین کو ایصال فرما، سید حسن نقوی
साहब के मरहूमीन को इसाल फरमा, ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद जाफरी साहब के मरहूमीन को इसाल फरमा, हसन मियाँ के मरहूमीन को इसाल फरमा, अख्तर अब्बास के मरहूमीन को इसाल फरमा, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन को इसाल फरमा। आज के दर्स का सवाब सैयद अनवर अली शाह के मरहूमीन को ईसाल फरमा, ज़ुबैर गोंदल के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, और हमारे इकबाल जो तशरीफ़ फरमा है इनके मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, अख्तर शाह साहब के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, जनाब सैयद साबिर हुसैन शाह साहब के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, जनाब सैयद ज़फ़र शाह साहब के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, आगा बरकत अली के मरहूमीन को और मेरे मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा। बारे इलाहा जितने मैंने नाम लिए हैं हम सब के गुनाहों को माफ़ कर, हम सब के रिज़्क़ व माल में बरकत अता कर, हम सब की औलादों को राह रास्त पे रख, हम सब का खातिमा अलल खैर फरमाना, हम सब को हज व ज़ियारत नसीब करना। बारेला हम सब को किसी का मोहताज न कर। बारेला जो यूट्यूब पे या अल महदी टीवी पे ये प्रोग्राम देखेंगे, सुनेंगे, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, उन सब पर भी रहम फरमा। खास तौर पे मंजूरीन को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। आगा मुख्तार हुसैन की ज़ौजा को मोजज़तन शिफा अता फरमा। हमारे मॉनिटर की ग़ियाबत में दुआ कर रहा हूँ, गायब मॉनिटर चट्ठा के बेटी सुंदुस चट्ठा को मुकम्मल तौर पर शिफायाब कर, दूसरी उनकी बच्ची को भी, कमल को भी, उनकी बेगम को भी, खुद चट्ठा साहब को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमा। अली रिजवी जो आज नहीं है मगर हमेशा होते हैं, उनको और अख्तर अब्बास को जो पूरी दुनिया में ट्रांसमिशन भेजते हैं, अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, इन बच्चों को लायक और नेक बना। हमारे भाई बहनों को तौफीक अता कर, वो अपने बच्चों को, बीबियों को, घर वालों को, बच्चियों को सेंटर में ला सके। बारेला ये जो आने वाले रमज़ान और मुबारक में मौलाना इमरान बुखारी साहब और मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब खिदमत अंजाम देंगे, सैयद हसन साहब, आगा मुख्तार हुसैन, इनकी खिदमत को कबूल फरमा, आगा बरकत अली, इन सब की खिदमत को कबूल फरमा। हमारी इंतज़ामिया की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हमारी इंतज़ामिया को भी दरसों में शिरकत की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा। हमारी इंतज़ामिया को इस रमज़ान में एक्टिव फरमा, उनको और चुस्ती अता फरमा और काहली उनकी ख़त्म फरमा। और जो हमारे शागिर्द भी काहली करते हैं, नमाज के टाइम पे वो गाड़ियों में सो रहे हैं, उनको बेदारी अता फरमा। रमज़ान और मुबारक में ख़ास तौर पे उनको बेदार फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम ज़माना के सिपाहियों में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ो नासिर इल्तिमास दुआ।